ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ خبروں، تجزیوں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی میزبان شانزے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کے لیے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ 6 فروری 2024 منگل کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سندھ میں بارش سے نہ صرف امیدواروں کو انتخابی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے بلکہ لوگوں کو شہروں کی حالت کی صورتحال میں تنقید کا اہم موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ سندھ کے باشندے شہروں کی خراب حالت کا ذمہ دار سیاستدانوں کی ناقص کارکردگی کو قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے صارفین نے لکھا کہ یہ ڈوبتی گاڑیاں، یہ ڈوبتے گھر، لیکن بھٹو اب بھی زندہ۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ بارش نے تمام اداروں کو ایک مرتبہ پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نام نہاد ترقیاتی اسکیموں پر اربوں روپے کا احتساب کیا جائے۔ پی پی اور ایم کیو ایم کے لیے اگر مگر کے ساتھ باہر آنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں۔ ایس یو پی کے رہنما سید زین شاہ نے کہا ہے کہ تھوڑی سی برسات نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے پول کھول دیے ہیں۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید زین شاہ نے کہا کہ پرویز مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو میں معاہدہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا۔ سرداری نے حکومت ملنے کے بعد سندھ کو تباہ کر دیا، سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سید زین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ووٹ دیتے وقت سندھ کی طرف دیکھنا، جو لوگ سندھ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں انہیں ووٹ نہیں دینا۔ اس موقع پر سید منیر حیدر شاہ، سید بدر الزما شاہ اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتل اب تک گرفتار نہ ہو سکے۔ سکھڑ سے واسطہ رکھنے والے نامور صحافی جان محمد مہر کی شہادت کو 174 دن گزر چکے ہیں۔ سکھڑ میں قاتلوں کی گرفتاری کے لیے صحافیوں کا احتجاج جاری ہے۔ کل بھی احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں نے کہا کہ جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پولیس کی ناکامی ہے، جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ تھرکول بلاک 1 کمپنی کی انتظامیہ کے خلاف متاثرین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ تھرکول کے نزدیک رہنے والوں نے بتایا کہ ہم مسلسل 3 ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمارے جائز مطالبات منظور کیے جائیں۔ کمر میں نوجوان کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ علی چانڈیو کے ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر علی چانڈیو کے والد کا کہنا تھا کہ پولیس اور دوسرے اہلکار علی چانڈیو کے گھر سے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ بیٹا جامشیدپور کے لاء کالج میں پڑھتا ہے، وہ گھر آیا تو اسے گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا۔ باڈھا تعلقہ موومنٹ کی جانب سے باڈھا شہر کو تحصیل کا درجہ دلانے کے لیے کامریڈ قادر بروہی کی قیادت میں ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر کامریڈ قادر بروہی، علی انور عسکری، عاشق علی شاہ اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باڈھا آبادی اور اراضی کے اعتبار سے تحصیل کا حقدار ہے۔ پیپلز پارٹی کے حکمرانوں اور مقامی نمائندوں نے باڈھا سے سوتیلی ماں والا برتاؤ کر کے شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ باڈھا کو تحصیل کا درجہ دیا جائے۔ گھوٹکی سے اغوا ہونے والے 3 مزدور 3 ہفتے گزرنے کے باوجود بازیاب نہ ہو سکے، ورثاء نے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ہمارے نوجوان آصف، عبدالقدیر اور ادریس کی بازیابی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ ہمارے نوجوان بازیاب نہ ہوئے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ سکھر میں مزدور یونین کی طرف سے بیراج کی بحالی والے کام میں بے قاعدگیوں کے خلاف احتجاج۔ غلام اصغر میسر کی سربراہی میں احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ رائس کینال کا کام درست نہیں ہوا، نوٹس لے کر کارروائی کی جائے۔ عمرکوٹ کے علاقے چھور کے نواحی گاؤں حویلی کے 2 نوجوانوں نے بھوک، بدحالی اور بے روزگاری سے تنگ آ کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ روی بجیر اور کملیش نے خودکشی کی۔
व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी फौजियों और जहाज़ों पर हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ये बात व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेमान ने इतवार के रोज कही। ताहम उन्होंने ईरान पर किसी बराह रास्त हमले को खारिज अज इम्कान करार देने से इनकार कर दिया। सुलेमान ने CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन शो में कहा, सदर जो बाइडेन वो करेंगे जो उनके ख्याल में करने की ज़रूरत है। सुलेमान ने कहा कि अगर आपको मशरिक़ वस्ता में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों पर या बहिरा अहमर में अमेरिकी बहरिया के जहाज़ों और तजारती बहरी जहाज़ों पर मज़ीद हमले नज़र आते हैं तो आप मज़ीद जवाबी कार्रवाइयाँ देखेंगे। सुलेमान ने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका मशरिक़ वस्ता में एक उसे वक्त में किसी तोसीशुदा जंग से बचने की कोशिश करेगा जब अमेरिकी और बरतानवी अफवाज ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों को दोबारा निशाना बनाने के लिए इकट्ठी हैं। अमेरिका बरतानिया के यमन में हौसी बागियों की तनसीबात पर हमले। इससे पहले अमेरिका और बरतानिया ने हफ्ते को यमन में हौसी बागियों के 36 ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन में अमेरिकी फ़ौज के एहलकारों के ड्रोन हमले में हलाकत के बाद से जारी है। पेंटागन का कहना था कि दूसरे रोज भी जारी रहने वाले ये हमले गोदामों, मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और दीगर अहदाफ पर किए गए। बयान के मुताबिक जिन अमलाक को निशाना बनाया गया हौसी बागी ये निज़ाम बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सऊदी अरब का इस्लामी फौज के लिए 10 करोड़ रियाल फंड का ऐलान। सऊदी अरब की क़यादत में कायम इस्लामी फौज के रुकन ममालिक के वज़रा दिफा का इजलास रियाज में हुआ है। सऊदी अरब ने इंसदाद दहशतगर्दी के इत्तेहाद की इस इस्लामी फौज के लिए 10 करोड़ रियाल का फंड देने का भी ऐलान किया है। रियाज में होने वाले इजलास में इत्तेहाद में शामिल 42 ममालिक के वफूद ने शिरकत की, जबकि सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सुलेमान ने हफ्ते को होने वाले इजलास की सदारत की। वो वज़रा दिफा के कौंसिल के चेयरमैन हैं। दहशतगर्दी से निबरत आजमा अहम ममालिक तुर्किया, मराकश, लीबिया, अफगानिस्तान, मिस्र, सूडान और बांग्लादेश भी इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। अमेरिका पहुंचने में नाकामी पर इंसानी स्मगलिंग का कारोबार चलाने वाला जोड़ा गिरफ्तार। गुर्बत से तंग और बेहतर जिंदगी के मुतलाशी लोग, खुसूसन नौजवान, बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपना मुल्क छोड़कर तरक्की याफ्ता ममालिक का रुख करते हैं। इस काम के लिए ऐसे अफराद को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है, मगर अक्सर इस कोशिश में ये लोग एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये एजेंट उन्हें उनकी मजबूरियों को जानते बूझते हुए सब्ज बाग दिखाकर एक ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं कि जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी ऐसे वाकयात बहुत आम हो चुके हैं, जहां नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा कर निकल पड़ते हैं। इंडिया में CID क्राइम ब्रांच ने फ्रांस से निकारागुआ जाने वाली एक परवाज जिसमें इंडियन शहरी सवार थे वापस भेजने के मामले पर वीजा एजेंट के तौर पर काम करने वाले एक जोड़ी को शुमाली गुजरात के इलाके से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि मुलजिम जोड़ा भी बैरून मुल्क जाना चाहता था, लेकिन बार बार बैरून मुल्क जाने की कोशिश के बावजूद वह कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद उन्होंने वीज़ा कंसल्टेंसी का काम शुरू किया और ये काम तकरीबन 1 साल जारी रहा। वो मुलजिम एजेंट नितिन के साथ बराह रास्त राब्ते में थे, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अवामी तहरीक ने नौशरफ फेरोज पटीदन और फुल शहर में सिंध दुश्मन मनसूबों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए, जिनकी क़यादत अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर लाल जरवार, सत्तारविंद, सलाम सुमरो और दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौके पर अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर लाल जरवार ने खिताब करते हुए कहा कि वफाकी निगरान सरकार ने सिंध पर 1 यूनिट नाफिज करके सिंध के ज़मीनों और वसाइल पर कब्जा किया है। पाकिस्तान के खालिक सिंधी कौम को दीवार से लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, GDA और दूसरी जमायतें एक ही हैं। ये सब पार्टियां अपने मफादात की खातिर सिंध दुश्मन मनसूबों के खिलाफ खामोश हैं। MQM का मशहूर सिंध दुश्मनी पर मुश्तमिल है। GDA और पीपल्स पार्टी के पास अवाम और सिंध के वसाइल को बचाने की कोई एजेंडा नहीं। दोनों पार्टियां अवाम को गुमराह कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने नए सूबे बनाने के लिए कमेटी कायम की और अगवानियों की हिमायत की। MQM की फरमाइश पर जाली आदमशुमारी कराई गई। उनका कहना था कि सिंध दुश्मन मनसूबों को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। इलेक्शन में हमारा साथ दें। अगर हम सिंध दुश्मन मनसूबों के खिलाफ जद्दोजहद ना करें तो हमसे हिसाब लिया जाए।
جی ایس ہند اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی ایس ہند اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی ترجمان حفیظ چانڈیو کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مظلوم قومیں اپنے وطن کی شناخت کو بچانے کے لیے جدوجہد کریں۔ جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا گیا کہ سندھی قوم 8 فروری کو کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہ دے، الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ایس ٹی بی سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی کی ٹنڈو محمد خان کے حلقے پی ایس 67 پر انتخابی مہم جاری ہے۔ ڈاکٹر قادر مکسی نے کہا کہ پی پی کے لوگ مسلسل ایس ٹی پی میں شامل ہو رہے ہیں، لوگ پیپلز پارٹی سے بیزار ہیں، پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے ساتھ دفن ہو گئی، اب زرداری لیگ ہے، زرداری لیگ بکھر جائے گی، کراچی سے کشمور تک اب سندھ پرست لوگوں کی حکمرانی آئے گی، منافقت والی سیاست ختم ہو جائے گی۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر نے پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے صاف، شفاف اور منصفانہ انعقاد پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں الہان عمر نے کہا کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ اپوزیشن پارٹیوں میں سے کسی ایک جماعت کو مجرم قرار دیا گیا ہو۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے نومبر میں پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ الہان عمر نے مزید کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق حالات کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل اور پاپولر لیفٹ الائنس کے کنوینر کامریڈ امداد قاضی نے کہا ہے کہ موجودہ کٹھ پتلی نگرانوں اور سابقہ اتحادی حکمرانوں اور ان کے سرپرستوں کی ملی بھگت سے انتخابات کے ماحول میں جس طرح سے لاکھوں ایکڑ زمین ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں اور جس طرح سے مجرمانہ خاموشی کے ساتھ پی آئی اے کراچی پورٹ ٹرسٹ، ریلوے پورٹ قاسم، او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشنز اور دیگر اہم اداروں کو غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ خود اس بات کا ثبوت اور اعتراف ہے کہ وہ کوئی درست فیصلہ نہیں بلکہ گھناؤنا جرم کر رہے ہیں۔ امداد قاضی نے نگرانوں اور پس پردہ حکمرانوں کو خبردار کیا کہ وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی زمینیں اور کوئی بھی ادارے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کرنے کے اقدامات کرنے سے گریز کریں اور اسی سلسلے میں کیے گئے فیصلے منسوخ کیے جائیں۔ کامریڈ امداد قاضی نے 5 فروری کے حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی ریاست کی طرف سے ایک طرف وہ اختیار بھی کشمیری حکومت اور اسمبلی کو حاصل نہیں جو سرحد کے اس پار قابض ریاست نے دے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان سے ملحق کشمیری علاقے کے عوام ہر سال 5 فروری کو احتجاج کرتے ہیں اور 5 فروری کو پاکستانی زیادتیوں کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پنجاب کے سیکریٹری ڈاکٹر خالد رانا اور صوبائی کمیٹی کے ممبر کامریڈ غلام رسول نے ایک مشترکہ بیان میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے مختلف اوقات میں لاپتہ کیے گئے 5 شہریوں کو ریاستی اداروں کی طرف سے قتل کرنے پر سخت احتجاج اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف شرعی بنیاد پر تحویل میں لیے گئے ان شہریوں کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے اپنے طور پر اذیتیں دے کر قتل کرنے کا نہ کسی کو حق ہے اور نہ ہی کوئی جواز ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پنجاب کے رہنماؤں نے اپنے بیان میں کہا کہ بعض سرکاری ادارے اور بعض غیر سرکاری حلقے جس طرح سے بلوچستان کے واقعات اور حالات کو پنجاب اور بلوچستان کا گمراہ کن رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اکثریتی لوگ بلوچستان کی عوام کے حقوقی صف میں کھڑے ہونے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن اور شہریوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ بلوچوں کے لیے جدوجہد کرنے والی ماہ رنگ بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان سے ملنے والی مسخ لاشوں کی ڈی این اے کرائی جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ماہ رنگ نے مزید کہا، حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ گزشتہ 2 مہینے سے زائد عرصے تک بلوچستان انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور بلوچ نسل کشی جس میں سر فہرست مسئلہ لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے کے خلاف کیج سے شال اور پھر شال سے ڈرنے کی شکل میں اسلام آباد میں مارچ کیا گیا اور بلوچستان کے ہر شہر اور گاؤں سے ہزاروں لوگوں نے ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف سڑکوں کا رخ کرتے ہوئے ریاست کے ان ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
लेकिन बलोच अवामी रद्द अमल के बावजूद रियासत बलूचिस्तान में अपनी पॉलिसियों में किसी भी तरह की तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च में सैकड़ों लापता अफराद के लवाकिन ने इस उम्मीद और भरोसे से मार्च में हिस्सा लिया ताकि इनके प्यारों को फेक इनकाउंटर में कत्ल न किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से रियासत बलूचिस्तान के हवाले से अपने जालिमाना और जाबराना पॉलिसियों को जारी रखने की ख्वाहिश रखती है। हालिया मच वाक़ये के बाद जिस तरह जिंदान से लापता अफराद को निकाल कर कत्ल किया गया, ये जुल्म और जबर की इंतहा है। रियासत मसल्ह अफराद की कार्रवाइयों का जवाब बनाकर लापता अफराद को कत्ल करके गैर इंसानी अमल का इर्तिकाब कर रही है। रियासत एक झूठे बयानिए पर बलोच नस्ल कुशी जारी रखे हुए है कि लापता अफराद पहाड़ों पर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो लोग मुसल्ह लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए कभी भी लापता अफराद के लवाकिन ने एहतजाज नहीं किया है। रियासत समझती है कि बलूचिस्तान में मुसल्ह जद्दोजहद का जवाब बनाकर जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को कत्लेआम करो और इस कत्लेआम के ऊपर झूठे बयानिए के जरिए मुतनाज़ा किया जाए। लेकिन हम रियासत पर वाजिया करना चाहते हैं कि जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मारवा अदालत कत्ल करने पर हम किसी भी सूरत खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मच वाक़ये में जितने भी मुसल्ह अफराद शामिल रहे हैं, इनमें से किसी एक शख्स का नाम भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल नहीं है और न ही इनके खानदान ने इनकी जिबरी तौर पर गुमशुदा होने का दावा किया है। लेकिन रियासत बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद उठाती है। इन्हें 2 महीने, 4 महीने, हत्ता के कई अफराद को सालों तक खुफिया जिंदानों में कैद रखा जाता है और बाद अज़ा इन्हें रिहाई हासिल होती है, जिनकी रिहाई की खबरें मीडिया और लवाकिन की जानिब से शाया भी की जाती है। अगर इन अफराद की तादाद का अंदाजा लगाएं जिन्हें रियासत ने लापता करते हुए अजियत देकर छोड़ दिया है, इनकी तादाद लाखों में होगी। हमारी जिबरी गुमशुदगी के हवाले से असूली मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि जिबरी गुमशुदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत आज खुद पाकिस्तान के अपने आईन और कानून के मुताबिक संगीन जुर्म है। अगर रियासत किसी शहरी को मुजरिम समझती है या इस शहरी पर किसी भी किस्म का कोई इल्जाम है, तो रियासत के पास अदालतें मौजूद है। मुल्की कवानीन के तहत इन्हें अदालतों में पेश किया जाए ताकि अदालतें और कानून फैसला करे कि ये लोग बेगुनाह है या मुजरिम है। अगर इन पर कोई भी जुर्म साबित होता है तो इन्हें सजा देने के लिए अदालतें मौजूद है। लेकिन इस तरह गैर कानूनी तौर पर लोगों को जिबरी तौर पर गिरफ्तार करके इन्हें महीनों और सालों खुफिया जिंदानों में कैद रखना और किसी भी मुसल्ह कार्रवाई के रद्द अमल में जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को हिरासत से निकाल कर कत्ल करना न बिल्कुल इंसानियत की धज्जियां उड़ाने के बराबर है, बल्कि रियासती कानून और आइन को भी रोंदने के मुतरादिफ है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कल मच वाक़ये के बाद इस वक्त 5 अफराद की ऐसी लाशें लाई गई है जिनमें 4 लाशों को इनके लवाकिन ने शिनाख्त किया है, जो पहले से रियासती अदारों के हाथों में जिबरी तौर पर गुमशुदा थे। बाकी 1 लाश के हवाले से अभी भी खदशा है कि वो भी जिबरी गुमशुदगी के शिकार फर्द ही है। जिन 4 लाशों की शिनाख्त हो गई है, इनमें बशीर अहमद मरी बल्दे आजी खान और अरमान मरी बल्दे निहाल खान मरी, जिन्हें 2 जुलाई 2023 को उठाया गया था। और इसी तरह तीसरा शख्स सूबेदार वल्दे गुलजार खान अरनाई बाजार से 9 सितंबर 2023 को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था, जिनके इन तीनों लापता अफराद के लवाकिन ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत करते हुए इनके बाजियाबी का मुतालबा किया था। और चौथी लाश की शिनाख्त शकील अहमद वल्दे मोहम्मद रमजान सकना जहरी से हुई है, जिनकी शिनाख्त इनके खानदान ने की है, जिनके खानदान के मुताबिक इन्हें 4 जून 2023 को जिबरी गुमशुदा किया गया था। जिन अफराद के लवाकिन इस्लामाबाद धरने में शिरकत करते हुए इनका बाजियाबी का मुतालबा किया था और आज वो यहाँ अपने प्यारों की लाशें उठाने आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत बलूचिस्तान में पुरअमन जद्दोजहद की तमाम राहें बंद करने की कोशिश कर रही है ताकि लोग रियासत से मायूस हो, जबकि दूसरी जानिब सिविल अस्पताल में लाई गई लाशों के लिए आने वाले खानदानों को जिस तरह ज़हनी कोफत से गुजारा गया है वो काबिल अफसोस है। आज बलूचिस्तान में रियासत के हवाले से बढ़ती मायूसी का जिम्मेदार रियासती अदारे हैं, जो मुसलसल गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों के जरिए बलूचिस्तान में खौफ पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरमान मरी और बशीर मरी और सूबेदार के लवाकिन इस उम्मीद से इस्लामाबाद आए थे कि इन्हें इस रियासत से इंसाफ मिलेगा, जो कि हर शहरी उम्मीद रखती है, लेकिन इंसाफ की बजाय इन्हें इनके बच्चों की मसखशुदा लाशें मिली, जबकि इनमें से 1 लाश इतनी मसख की गई है इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, जो बलोच दुश्मनी और बलोचों से नफरत की वाजिया मिसाल है। जिन 5 लाशों को कल सिविल अस्पताल कोयटा लाया गया था, इनके हवाले से रियासती अदारे ये झूठा
झूठा बयानिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 अफराद मुसल्लह थे और मच वाक़ई में मारे गए हैं। लेकिन रियासत इस छोटी सी बात को समझने से कासिर है कि झूठे बयानिए बनाने से रियासत अपने जुल्म, मजालिम और जबर को छुपा नहीं सकती है। इन 5 अफराद में से 3 के लवाकिन ने अपने प्यारों की शिनाख्त की है और चौथे ने आज सुबह अपने प्यारे की शिनाख्त की है, जो पहले से जबरी तौर पर गुमशुदा थे और इनकी जबरी गुमशुदगी के तमाम तर सबूत इनके लवाकिन के पास मौजूद है। जबकि एक और बात हम रियासती अदारों पर वाजिया करना चाहते हैं कि जो खानदान कल से यहाँ सिविल अस्पताल में मौजूद है, जिनके बच्चों को मारवाए अदालत कत्ल किया गया है, इन खानदानों को अपने बच्चों की लाशों को लेने के लिए जबरदस्ती एक गैर कानूनी फार्म दस्तखत करने के लिए दिया जा रहा है, जिनमें जबरदस्ती इनके बच्चों को दहशतगर्द साबित किया जा रहा है। लिहाजा जिन जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मारवाए अदालत कत्ल किया गया है, इनके खानदान किसी भी सूरत इस गैर कानूनी फार्म को दस्तखत नहीं करेंगे। जबकि हम एक मरतबा फिर दुनिया पर वाजिया कर देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त बलोच कौम की नस्ल कुशी जारी है और इसमें रोज बरोज शिद्दत लाई जा रही है। लापता अफराद को फिर जाली मुकाबलों में कत्ल करके रियासत ने वाजिया पैगाम दिया है कि वो बलूचिस्तान में अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेगी। हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत ह्यूमन राइट्स अदारों से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में इन वाक़यात का नोटिस ले, जबकि बलोच कौम से अपील करते हैं कि वो अपने लोगों की जिबरी गुमशुदगियों पर खामोशी के बदले सियासी जद्दोजहद की राह अपनाएं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बलूचिस्तान की कोयटा के अवाम से अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और जो लापता अफराद के लवाकिन इतने अरसे से दर्द और कर्ब में मुब्तला थे, जिनके प्यारों की लाशें यहाँ पे फेंकी गई हैं, उन लाशों को इन लापता अफराद के लवाकिन हैंड ओवर करने में इनकी मदद करें। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि अब सिविल अस्पताल में कितनी लाशें यहाँ पर मौजूद हैं, कितने की शिनाख्त हो गई, कितने आप लोग जो है यहाँ से जो लवाकिन है वो ले गए, और दूसरा ये बताएं जो फार्म की आपने बात की उसमें क्या लिखा गया है, क्या देखिए वो फार्म तो मीडिया में मौजूद है। इस वक्त सिविल अस्पताल में 5 ऐसी लाशें लाई गई हैं, जिनमें 4 की शिनाख्त इनकी लवाकिन की है। 3 ऐसे लोग थे, अफराद थे जो बाकायदा रजिस्टर हुए थे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के साथ, और BYC की में भी इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जो इस्लामाबाद धरने में मौजूद भी थे। और चौथा खानदान अभी आज मौजूद है, जिनके मुताबिक इनके प्यारे को पहले से जबरी गुमशुदा किया गया था, और एक लाश अभी तक जिसकी अभी तक तशखीस नहीं हो सकी है। अब अफसोस तो ये भी होता है, हमें हम बारह कह चुके हैं कि जब लाशें गिरती है तो हजारों खानदानी इस गर्द में मुब्तला होती है कि कई गिरने वाली लाश उनकी प्यारी की तो नहीं। अब जो लाश जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी है, उनका DNA तक भी मौसूल नहीं होता है इन लोगों को, ताकि ये लोग जो है ना DNA कराकर पता चल सके कि ये प्यारा जो बचा हुआ है ये किसका है। तो फिलहाल के एक फार्म जो बनाया गया है उसमें जो लापता अफराद है जिन पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, उनकी लाशें हैंड ओवर करने के लिए उनको दस्तखत किए जा रहे हैं कि आपका जो ये फर्द है ये जो है ना किसी दहशतगर्द तंजीम से मुलविस है और आप इस पर साइन करें। तो ये मेरे ख्याल से गैर इंसानी अमल है जो हमारी इंतजामिया कर रही है और मुसलसल तौर पर कर रही है। रियासत और इसके इंस्टीट्यूशंस को इस बात का बिल्कुल इल्म होना चाहिए कि इस तरह करके वो सिर्फ नफरतों को फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये लापता अफराद के लवाकिन आज नहीं तो कल अपनी लाशें यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन पीछे जो रह जाएगा वो सिर्फ नफरतें होंगी जिनको फैलाने वाली ये रियासत होगी। डॉक्टर, जो लाशें बोलान से मुंतकिल की गई, जो स्टेट का दावा है कि वो सुसाइडर थे वटेवर जो भी, और जो मिसिंग पर्सन थे उनको मार के यहाँ पे लाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये वाजे कर देती कि ये वाकई मिसिंग था और ये होता है। अब ये जो 5 लाशें इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए वो तो आप जाकर सिविल इंतजामिया से पूछे, क्योंकि हमें तो वहाँ एंट्री के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर रियासत है उसके इंस्टीट्यूशन से तो वो बाकायदा तौर पर तहकीकात करे। सबसे पहले जो लाशें गिरती हैं उनका DNA कराया जाए, कितनी तादाद यहाँ अभी भी मौजूद है जिनको जो है ना नामालूम करार देकर ईदी जो है ना उनको दफना देती है। ऐसी बहुत सी रिपोर्टें मौजूद है। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये सवाल आप रियासत से पूछे कि वो किस तरह जो है ना एक कानूनी जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किए बगैर लाशों को यहाँ फेंक दी और उसके बाद नामालूम करार देकर इन लाशों को दफना दिया जाता है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। अस्करी दारुल अमान में बेवा जमहूरियत की शादी के उन्वान से वसतुल्लाह खान लिखते हैं, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, जिथे भी देखो PTI है। मज़कूरा बाला तारीख़ अल्फाज रक्षा ड्राइवर नवाज में इतला के हैं, जो पिछले 7 बरस से मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर रक्षा खड़ा करता है। उसे मोबाइल कंपनियों के तमाम रियायती पैकेजेस अजबर हैं और इसकी बदौलत आसपास के तमाम रिक्शा ड्राइवर्स के पास सेकंड हैंड एंड्रॉयड फोन्स हैं।
जब सवारी नहीं मिलती तो या तो वो ये फोन्स रक्षा चालकों के कानों से लगे रहते हैं या फिर वो इन पर गेमें खेलते हैं, एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं या फिर आजकल उन पर पीटीआई के गाने सुनते हैं। उनमें से किसी का वोट भी कराची में नहीं। ज्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब की सराइकी पट्टी से और सोशल मीडिया की वबा की बदौलत पीटीआई से है। मेरे मोहल्ले में दिन में 2-2.5 बार किसी जमायत इस्लामी, MQM या PP के लाउड स्पीकर वाली एलांची वैन गुजरती है तो अचानक से याद आता है कि अरे हाँ, जुमेरात को इलेक्शन भी होने वाले हैं। पिछले 2-3 रोज के दौरान थोड़े बहुत झंडे और पोस्टर्स भी नजर आने लगे हैं। रवायती ताम झाम, मोटरसाइकिल रैलियां, नारेबाजी और आपस में जो मानफिक़े बाजी का फुकतान है। हम वक्त फारग हालत में कॉम्प्लेक्स के गेट पर आतों जातों को स्कैन करने वाले बेरोजगार अधेड़ उमर अमदाद कुरैशी का कहना है कि मैं अब तक हर इलेक्शन में MQM का पॉलिटिकल एजेंट रहा हूं, मगर इस वाले से ज्यादा सुलेमानी इलेक्शन आज तक नहीं देखे। कोई रौनक मेला नहीं। 2018 में कम से कम आखिरी 2 हफ्तों में लगता था कि सियासत ब्याह ही जा रही है, पर आज तो यूं है गोया अस्करी दारुल अमान में लावारिस गरीब या बेवा बच्चियों की इज्तिमाई शादी हो रही हो। बस हाथ पीले करो और जान छुड़ा के हुज्जत तमाम करो। इसलिए मैंने इस बार पार्टी को भी कह दिया कि मैं ऐसे बासी और उकताए हुए इलेक्शन में पोलिंग एजेंट बन के टाइम जाया नहीं करूंगा। यही गेट पर बैठा बैठा तमाशा देखूंगा। एक जमाने में मालाबारियों की चाय खाने और ईरानी रेस्टोरेंट्स कराची के सियासी मिजाज का कुतुब नुमा हुआ करते थे। अब ना मालाबारी रहे और ना ही ईरानी कैफे। अब कराची के हर कोयटा पशीन के चाय खानों की उजारादारी है। हर मोहल्ले में औसतन 2 से 3 कोयटा होटल मिलेंगे जहां अंडा पराठा चाय 24 घंटे दस्तयाब है। फारकुल बालों और बेरोजगार लमंडों का झमकटा शाम के बाद सुबह काजिब तक यही मिलेगा। इसी हुजूम में बेकरार में चंद अधेड़ उमर खशखशी या सफेद सर भी दूर दराज जजीरों की तरह उभरे हुए नजर आते हैं। ये चले हुए कारतूस आपस में क्या बातें करते होंगे मुझे नहीं मालूम, मगर इन जजायर से कभी किसी कहके की आवाजें नहीं उभरी। मैं कभी कभी इन जगमगटों के किनारे कुर्सी लेकर चाय सुड़कने की देर तलक अदाकारी करता हूँ और एक इज्तिमाई गोते की तरतीब शुदा बेतरतीब सिम्फनी में से कोई सियासी और दानिश साज अलग से सुनने की नाकाम कोशिश करता हूँ। मेरे कानों की तहकीकी रिपोर्ट यह है कि इस हुजूम में 9 नस्लों की बेशतर भड़ास आपस के अबे तबे में या पुरानी नस्ल के फुकरेबाजी की जगह लेने वाली गालम गलोच के तबादले में निकल जाती है। उनमें से अक्सर फ्लैटों और छोटे घरों में रहते हैं जहाँ जिंदगी जिसको जहाँ जगह मिली सो गया के उसूल पर चलती है। वालदेन उनसे और ये वालदेन से तंग हैं। उनमें से 90% ख्वानदा और नान ख्वानदा बच्चे कॉलेज या कोचिंग सेंटर की क्लासें लें ना लें, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इर्द गिर्द की दुनिया नापने की कोशिश जरूर करते हैं। उनके दिमागों में दकीक सोच की जगह नहीं बची, क्योंकि तनकीदी सोच जरूरत जुस्तजू और किसी हदफ को हासिल करने की लक से पैदा होती है। उनमें से अक्सर नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं और किधर को जा रहे हैं। अक्सर के वालिदैन वाजिबी किस्म की नौकरियों या छोटे मोटे कारोबार से वाबस्ता हैं। अलबत्ता इस रेवड़ में आने वाले कल के बारे में मायूसी मुश्तरक है, मगर इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है कुछ नहीं मालूम। मैंने सुना है कि पंजाब बिलखुसूस वस्ता पंजाब के GT रोड इस्लाम में हर नौजवान इस मुल्क से जाना चाहता है, मगर मेरे मोहल्ले के चाय खानों के नौजवान भीड़ बस एक गोल गोल हयातियाती दायरे में घूम रही है। दिन में सोने और रात को जागने और उसके वक्फे के दरमियान कुछ थोड़ा बहुत तालीमी निसाब जहर मार करने या छोटा मोटा काम करने वालों की भीड़। सन 2015 तक ये रेवड़ MQM के पीछे थे, फिर इमरान खान उनका लीडर बन गया और उनके दिनों कोई नाम ज़हर बहस नहीं। अलबत्ता इनमें से कुछ नौजवान जो ये तो नहीं जानते कि मैं क्या पेशा करता हूँ, मगर उनके आसपास मंडलाने के सबब चेहरा शनास जरूर हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेते हैं कि सर जी क्या होने जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले तुम बताओ इस वक्त तुम्हारे ख्याल में क्या हो रहा है। वो कहते हैं मालूम नहीं। फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा पहले क्या हुआ, वही बता दो।
कहते हैं मालूम नहीं। फिर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। वो जो कहते हैं कि दोस्ती, दुश्मनी, नफरत, मोहब्बत एक ही सिक्के के दो रुख हैं और यही सिक्के ज़िंदगी का चेहरा है। जब किसी नस्ल से ये बुनियादी एहसासात छीन लिए जाए और वो रफ्ता रफ्ता आस पास से लाताल्लुक होती चली जाए, फिर ऐसा बेयकीन समाज गने के फोग की तरह होता है जो वजन रखता है और जगह भी घेरता है मगर रस से खाली होता है। ये समाज ऐसा नहीं था, बहुत रसीला था। उसे बड़ी मेहनत से जिंदगी से बेजार फोग में तब्दील किया गया है। ऐसे में ये ढेर क्या और इसका वोट क्या और उसका फैसला क्या, और जो इस नस्ल को मुतवज्जा करने के लिए इन दिनों गला फाड़ रहे हैं वो सवाए सूती आलूदगी बढ़ाने के और क्या कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। याद रखें, वोट एक अमानत है, लिहाजा देखें अमानतें हकदार तक पहुंच रही हैं या नहीं। अल्लाह निगहबान।